غلط سنی ہے. ایک نا وہ مفتی راشد نے وہ رو رو کر عرض گزارش کرنی شروع کر دی. تو مرزا انجینئر نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی. دیکھو جی انہوں نے خدا بنا لیا مولانا الیاس قادری کو. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵੇ. کس چیز کی دلیل؟ یہ جو عثمان بھائی بول رہے تھے اس کی بول رہے ہیں جی میرے پاس دلیل ہے کہ امی شاہ ہے کہ نہیں. اچھا اچھا، کون سے مردئی صاحب ہیں جناب؟ یہ جی مٹی دا بندہ مردئی. اچھا، مٹی دا بندہ کون ہے جناب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال چال؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ ابھی صرف 1 منٹ مجھے ٹائم چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ جو ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ یہ مٹی کا بندہ جو ہے یہ مذہبی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب میری بات غور سے سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات کا مطلب بتا دیں کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ جی میں نے سوال کیا بتانا کرنا ہے. آپ نے، سوال کریں. ہاں جی، میں وہی پوچھ رہا ہوں نا. میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کو میں الہ بتاؤں کا گا. مطلب ہوتا ہے کہ ایک کوئی منٹ خدا نہیں. ہاں جی، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. ہاں، کس کے سوا؟ اللہ کے. الا اللہ، مگر اللہ خدا ہے. 1 منٹ میری جان، 1 منٹ بات مجھے پوری کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا، پہلے کلمے کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں یا رسول. اوکے، ٹھیک ہے؟ جی کریں بات آپ. اس بات کو آپ مانتے ہو سارے یا نہیں مانتے؟ یہ جتنے جی بھی آدمی مانتے دور ہیں پہ جناب. بیٹھے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو آخری خطبہ نبی پاک نے دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. یہی کہا تھا. آپ کسی بابے کو، کسی انجینئر کو، محمد علی مرزا ہو، اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا پردادا ہو، ہماری طرف سے سارے جائیں باڑ میں، ہمیں کوئی فرق نہیں. ہمیں اس چیز سے فرق ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہی بات تھی، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد انہوں نے کسی اور آدمی کا نام لیا. اس ٹائم جو بڑے بڑے ادھر بھی اس ٹائم بھی علماء کرام تھے، بلکہ علماء کرام تو کچھ نہیں تھے، سب سے بڑے ان کے پاس بابے تو 4 تھے، ٹھیک ہے جی. ان کو کیوں نہیں انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑا کے کہا کہ 1 لاکھ کے مجمع میں کہ یہ میرے بعد یہ ہے جی؟ کسی کا نام لے کے کہا تھا. غصہ نہیں ہونا، نہ ناراض ہونا ہے. بدتمیزی کرو گے تو آپ سے بڑا بدتمیز ہوں. میری گزارش سمجھ کے بات کریں گے تو میں رسپیکٹ بھی کروں گا، کوئی غلط بات نہیں کروں گا، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو توحید کی بات آپ لوگ ادھر بیٹھ کے کر رہے ہو سارے، مجھے یہ بتاؤ جو توحید ہے نا، توحید اس کے اوپر کوئی کمپرومائز قرآن نے کسی ایک جگہ پہ بھی تھوڑی سی بھی اللہ نے ڈھیل دی ہے؟ بتائیں. سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے 18 صحابہ کا نام لے کے بتایا، آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کہ اگر یہ بھی اللہ کے شریک ہو نا تو کل کو ان کے اوپر بھی بڑے دن کا عذاب آ سکتا ہے.
اگر آپ مان لیں یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو قرآن کی ایک اور صورت کی آیت کا حوالہ دے کے آپ کو پڑھ کے بتا سکتا ہوں کہ قرآن کیا یہ بات کر رہا ہے۔ دیکھو ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے ادھر محمد سارے ایک فیملی ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو ایسے نوچنے کی کوشش کریں گے نا، کل کو جب قبر میں جانا ہے ادھر جا کے کسی نے یہ تو نہیں نا پوچھنا کہ تم کس کی لڑی سے ہو، تم راجپوت ہو، جٹ ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کون نہیں، کسی نے پوچھنا ہے؟ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، ہم اچھا، الحمدللہ ہم بھی اہل سنت ذرا ہیں۔ آپ کی بات نا سنیں سر تقریر جی، کافی میری لمبی جان ایک تقریر ہو منٹ، گئی ہے۔ نہ میں بس کال بند کرنے لگا، میں کوئی نے جو موقع بات دیں گے آپ بولنے کی کا۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، اب نہ بیچ میں بولے جی مٹی کریں کا بندہ۔ مطلب آپ تو اگر تو تقریر کرنی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے اور منہ بھی باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر بھی چاہیے۔ اور اگر تو بھائی آپ کا کوئی اعتراض ہے تو اعتراض بتائیں، اس کا جواب لے لیں۔ ابھی تک آپ کا اعتراض مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اعتراض کیا ہے اصل میں آپ کو۔ جی مائک کھولیں۔ مٹی کا بندہ جی مائک کھولو۔ اچھا، ابھی میرا یہ گزارش ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض ہے تو یہ بتائیں۔ اعتراض میرا صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان دنیا میں آیا کہ جو ایک مکھی بھی بنا سکتا ہو؟ تو آپ یہ جو ابھی بیٹھ کے ادھر باتیں کر رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کسی ایک کا کوئی حکم بتا دیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو ہم بھی ان کو مانیں گے نا۔ جی، جواب لے لیں آپ۔ جی بس یہ سوال اعتراض، جی مختصر جی ہوتا ہے، سوال مختصر ہوتا ہے، سوال جو ہوتا ہے نا وہ مختصر ہوتا ہے، اور دوسری جو نا تقریر ہوتی ہے، تقریریں تو پھر وہ گھنٹہ ڈیڑھ دو ویلے ہو کے سننے والی باتیں ہیں نا۔ سوال مختصر ہوتا ہے، آپ سمجھدار آدمی اپنی گفتگو سے تو سمجھداری لگ رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے مختصر۔ آپ نے سوال کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مکھی کا پر بھی بنا سکے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ علماء کرام فورس کرتے ہیں کہ ادھر جانا ادھر جانا اور قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا۔ یہ بھی کوئی جگہ بتا دیں کہ جدھر یہ بھی لکھا ہو کہ قرآن کو ڈائریکٹ ہم نہیں پڑھ سکتے، یا چلے کسی بس ایسے علماء۔ ٹھیک ہو ایک گیا، سیکنڈ پتہ بھائی چل جی، گیا سوال یار، پورا نہیں ہوا، مختصر سوال پورا نہیں ہوا۔ سوال نا، آپ بہت لمبا تقریر کرتے ہیں آپ، سمجھ آ گیا جتنے بھی بزرگ آئے ہیں نا، ایک جی، منٹ سمجھ بس، آ وہ گیا جتنے بھی جی بزرگ بابا آئے جی، ہیں، سمجھ آ گئی ہے آپ۔ جی کسی ایک نے بھی ترجمہ کیا تو بتا دیں، صوفی کرام میں سے اچھا، جو آئے۔ یہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتا ہے ہلیا ہویا، یعنی بندے کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، بندے کو کوئی چوٹ پہنچی ہے، بندہ کوئی پاگل ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ذہنی اس کو کوئی پریشانی ہے، تو اس کو عام روٹین میں کہتے ہیں جی بندہ ہل گیا ہے۔ کہ نہیں، آپ بات کر رہے ہیں جی وہ کوئی ایسا بندہ ہے کوئی مکھی کا پر بھی بنا سکے، چلو اب مکھی کے پر بنانے کا علماء کی اتباع کے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل الگ تلگ چیزیں ہیں۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کا سوال اصل میں کیا ہے۔ اب جواب سن لیں بھائی، بات یہ ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ کیا ہے جناب بتائیں، مائک اوپن کریں۔ جی بھائی جان بولیں۔
اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ٹھیک ہے، جن کے اوپر تم نے اپنا انعام بخشا، ٹھیک ہے، جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام بخشا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ متقی اور پرہیزگار ہے نا۔ ہاں اور متقی کون ہے؟ پرہیز، جی ٹھیک۔ ہاں جی۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے ان کے رستے کے اوپر ہمیں چلا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے رستے کے اوپر چلنا، حالانکہ نماز ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ تو شرک ہو جائے گا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور کا ذکر بھی کریں گے تو شرک ہو جائے گا نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری نماز کے اندر اللہ ہی اللہ ہوتا، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لیکن نہیں، ابھی تو نماز آپ نے شروع کی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے اس کے رستے کے اوپر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کی ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم اس طریقے سے دعا کرو کہ میرے رستے کے اوپر چلو، یعنی اللہ یہ کہے کہ میرے رستے کے اوپر چلو، لیکن نہیں، اس نے جناب بابے بزرگوں کے راستے کے اوپر کہا کہ چلو، بابے بزرگوں کے راستے کے اندر چلو، ان کے اوپر چونکہ میں انعام کر چکا ہوں۔ یہی انعمت علیہم کا ذکر ہمیں سورہ النساء کی آیت 69 کے اندر ملتا ہے، 69۔ وہ صدیق ہیں، وہ شہداء، بیت اتار، تمام انبیاء اور رسول سب آتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ان کے رستوں کے اوپر چلنا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ یا آپ ہیں یا تباہ نہیں کرنی؟ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ چلیں دیں جواب۔ اس کا جواب صرف اتنا سا مختصر دوں گا کہ کسی بابے کا نام لے کے نہیں بات کی، وہ پیغمبروں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسی ہر گل 'ਚ اپنے بابے نہ لے آیا کرو، پیغمبراں دی گل کیتی گئی ہے، تے نال یہ بھی کہا گیا وے کہ نبی نو خود نہیں سی اس چیز دا علم ہے جنی دیر تک اللہ پاک وہی نہیں سی بھیج دے، ٹھیک ہے؟ تسی ہر گل 'ਚ انہاں نو لے آندے ہو، سرکار جڑی گل قرآن دے مطابق ہو رہی ہے نا، نبیوں کا ایک منٹ نام تو نبیوں کا بھی نہیں لیا نا، من النبیین مطلق نبی کا ہے تو اس کے اندر سارے نبی شامل ہیں، 1,24,000 نام تو ان کے بھی موجود نہیں ہیں۔ ہاں جی سرکار میری گل سنو، میں گل توحید ہی کر رہا کہہ رہے ہیں کہ کسی کا نام خاص نہیں کیا، یہاں پہ تو اللہ نے نبی کسی کو بھی خاص نہیں نہ کیا۔ بتائیے یہ بات کیا سرکار، پھر یہ بات میں محمد کر نبی ہی صلی نہیں اللہ رہا۔ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نہیں لیا اللہ نے تو کیا ان کی تباہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، بتائیے کیا آپ یہ نہیں کہہ کریں کے گے جان اتباع۔ چھڑائیں گے کہ کیا نبیوں کا نام تو لیا کو نہیں، تو لہذا ہم نے جناب نبی کریم کی خصوصی طور پہ نہیں اتباع کرنی کیونکہ نام نہیں لیا؟ وہ جیسے سرکار اللہ نے جب نبی اللہ نے علماء کرام کا نام نہیں لیا، مطلق بتایا ہے، والصالحین، اور تمام صالحین، صالحین کے اندر یہ تمام علماء بھی شامل ہیں، تمام اولیاء اللہ شامل ہیں۔ اللہ کا تو یہی مزاج ہے، وہ نام نہیں لیتا، اس نے نام نہیں مخصوص لے کے کہا کہ بھائی ان کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے، اس نے تو مطلق کہا کہ سارے نبی، سارے صدیق، سارے شہید اور سارے صالحین ان کے اوپر میں نے انعام کیا اور ان کے رستے کے اوپر تم نے چلنا ہے۔ یہ کون سی بے وقوفی اور جہالت پر مبنی آپ بات کر رہے ہیں؟ لو جی نام نہیں لیا، کیسے یہ جہالت ہے جناب؟ الامان واللفیظ۔ ہوں میں بول سکتا آپ نے اس کے جملے پہ غور نہیں کیا، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کی اتباع بھی نہیں کرنی۔
नहीं नहीं वो यही कह रहा है ना, मरज़ई यही कह रहा है ना कि देखो जी वालिद का नाम नहीं लिया, इनके वालिद का वही भी कह नाम रहे हैं नहीं ना कि भाई लिया, नाम नहीं लिया जी, किसी आलिम का नाम नहीं लिया, लिहाजा किसी आलिम की हमने इत्तबा नहीं करनी। तो भाई नाम तो फिर नबी किसी का भी नहीं दिया। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੌਹੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ चलो ਨਹੀਂ अब ਆ ये ਰਹੀ, मैं देखें, तौहीद ਦੀ ये ਗੱਲ देखें कर रहा बात उलमा की 5 करके मिनट अब हो तौहीद गए पर आ हैं, गए हैं। 1 मिनट मतलब नहीं, मैंने नहीं, पहले 1 कहा मिनट, था 5 कि मिनट आपका हो- मोहतरम दिमाग हिला हुआ है, आप ठिकाने पर नहीं है, आप अच्छा, मजदूर सिर्फ आदमी दिमाग- हैं, सिर्फ ज़हनी दिमाग मरीज है ਤੁਹਾਡੇ आप। ठीक। चले मैं गलत बात कर रहा हूँ, गवाही ले ले, माइक म्यूट करें जरा, गवाही ले लो, गवाही ले लो, माइक आप मेनू म्यूट म्यूट करें। करके गवाही ले लो, माइक हाँ म्यूट जी, तो मैं कर करें देना, ना, गवाही ले लो। माइक म्यूट करें जी। किलर साहब आप बताएं जरा कि ये इनका दिमाग सलामत है इस टाइम? जी खराब है ये कभी कोई बिल्कुल। सवाल कर रहे हैं, कभी कोई जंप लगा के कहीं आ रहे जी। जी बिल्कुल खराब है। ये पहले बुजुर्गों पे बात हो रही थी, तो ये बंदा अपना तौहीद पे आ चुका है ये बंदा। हाँ जी, अच्छा जी, अगले कौन है ये डीजे भाई जी, आप बताएंगे? जी जी ऐसे ही डावाडोल मैं कहा, डावाडोल दिमाग। चलो जी, 2 गवाहियां हो गई हैं। अबू हसन आप मौजूद हैं, बताएंगे, आप गवाही देंगे? जी शाह साहब, ये खुद जो है ना ये कंफ्यूज है बहुत बड़े, इनको खुद नहीं समझ कंफ्यूज आ रही है, मेरा ठीक है, सवाल जवाब मिल करना गया क्या है। लो जी, 3 गवाहियां हो गई हैं। आगे कौन बैठे हैं? सुल्तान साहब हैं कोई जी, आप गवाही देंगे? हाँ जी, ये तो पूरे का पूरा ही हिला हुआ है बंदा ये। हिला हुआ है जी, 4 हो गई हैं जी। इमाम साहब बैठे हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हाँ, इसने उस्मान। बात शुरू की वो जी आखिरी खुतबा में नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली के बारे में ये कहा, फिर आगे उलमा की तरफ आ गया। अब जब 3-4 मौज़ूआत इसने बदले हैं तो दिमाग हिले की निशानी हिला हुआ है जी। टोटल गवाहियां हो गई हैं 1 2 3 4 5, आखिरी गवाही रह गई, ये 9 साहब बैठे हैं। आप बोलेंगे भाई? चलें, वो मसरूफ होंगे। लो जी, तो भाई हाँ जी, करें अब बात। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਸਲਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਹੈ ਵੇ ਸਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਮੇ ਤੋਂ, ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਅਗਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ नहीं, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ है। अच्छा चले, बताइए कि अब उलमा की इत्बा करनी है आपने कि नहीं करनी? मैंने कुरान से दलील दी है, सूरह फातिहा की दलील दी है। अब भी आप कहेंगे कि नहीं, हमने उलमा के पीछे नहीं चलना? ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੇ हाँ, ਪਿੱਛੇ तो ਚੱਲਣਾ अल्लाह कह ਯਾਰ? रहे हैं ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ना, ਕਰਦੇ अल्लाह ਹੋ? की तो आप कुरान के पीछे तो नहीं ना चल। ਅੱਛਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਸਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਹੀ ਨਾ। नहीं, पुकारना लग गया है, इत्बा करना लग गया है। अभी तो इत्बा की बात ਇਤਬਾਹ हो रही ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ है। ਨੇ? ਇਤਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ? नहीं है, नहीं, मैं ਮਕਸਦ कहना ਸਿਰਫ चाह ਇੰਨੀ कुछ रहा, ਜਿਵੇਂ आप ਸਰ ऐसे ਜੀ ही। 1 ਮਿੰਟ सर जी, यार आप यानी कि कौन सी, आप मुझे सच्ची सच्ची बताना, कौन सी पीते हैं या भी कौन सी पीते हैं?
ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਜੋ ਇਹ अल्लाह का शुक्र है कि जड़ी तुसी पी रहे हो ना वो तो ना ही नहीं पी नहीं रही है तो हराम चंगी है, गल है हमारे बस। दीन के अंदर हराम है, हमारे दीन में हाँ जी, हराम यही है, कह रहे हो। हम नहीं पीते। आप ना मेरे भाई ऐसे ही खाम खाई सिर ढा के रखिया, बात एक नहीं, आपकी नहीं, बात एक आपकी बात मशरक को जा रही है, एक मगरब को, एक शमाल को, एक जनूब को, कोई सुर स्वाद नहीं, कोई बिल्कुल फारग। यकीन माने आपका नाम तो नहीं मुझे पता, आज तक कोई दुनिया का कादियानी या मर्दई ऐसा हमें मिला ही नहीं है कि जो आप जैसा ना हो। अल्लाह दी कसम है, सब आपकी तरह ही होते हैं, तमाम कादियानी और मिर्जा जूनियर के फॉलोवर मर्दई एक जैसे। अच्छा मैं मतलब वैसे उनको एक गल पता ही नोट की कख नहीं है एक कोई। मिनट पता ਤੁਹਾਨੂੰ और बहुत पता दावे है मैंने तुम सिर्फ एक लोगों गल के दसो हम हैं मुस्लिम इल्मी किताबी, कर ले मुस्लिम नहीं, मैं गौर ते मरने गल से नहीं पहले की। हो जाते यार। मैं पहले क्या है, और मैं बड़े पहले बड़े क्या है, मैं नारे और किसी दा बड़ियां नाम ही नहीं बड़ियां लेता। छोड़ते हैं तुम लोग। मैं कह रहा मैं किसी ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शादी- ਛੱਡ ਦੇ यार शादी ये भाई देखें कि- ओ यार कोई और गल करो इन्हां दे नाल भाई है मेरे वसों बाकी बाहर ਤੁਹਾਡੀ है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ शादी ये ना कुरान, अच्छा ये चला ही गया मर्दई। अच्छा ये कुरान जो है ये हमें हुक्म दे रहा है कि हमने मोमिनीन जो है ना उनके रास्ते की तबाह करनी है। ये सूरा निसा है और इसकी आयत नंबर है 115। इसमें जो है वो अल्लाह ताला की दात फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। इसमें अल्लाह ताला की दात फरमा रहे हैं कि जो मुसलमानों के रास्ते की इत्तबा नहीं करेगा ना तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम उसके हाल पर छोड़ देंगे, उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे। और अच्छा ये कह रहा था तलवार मर्दई कि साहब नबी आए की हैं इत्तबा कोई, की ये जरूरत कौन नहीं। है इनसे पूछ लें। उस्ताद मोहतरम पहले वो शहरोज आए जी, ये नीचे काफ़ी कमेंट कर रहे थे और काफ़ी इनको ज़रा चुपाई ये लगी तलवार हुई साहब थी, ये बोले। बात करना चाह रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम लब्बैक सलाम। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लानत मिर्जे कादियानी ते मिर्जे जेल मीत। शायरी मैं ना काफी देर की कॉल पाई थी, बस वो पिछला बंदा निकल गया था, इस वजह से मैं सुन रहे हैं। अच्छा ना यहाँ पे हमारे सिग्नल भी सही नहीं, पता नहीं नेट का पाकिस्तान में मसला बना है तो आवाज़ भी कट रही है। यकीनी सी बात है ये मेरी तरफ ही होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी साफ प्रॉब्लम आ चल रही रही है। अच्छा तो यार कोई जगह 2-3 छोड़ें और कोई मर्दई कोई कादियानी आए, आओ तबलीग करो भाई कादियानियों मर्दइयों। ये शाह जी ये शहरोज आए हैं, ये हैं मिर्जा इंजीनियर के मर्ज़ई। जी जी शिरोज ये बात साहब, करिए। हाँ जी शिरोज साहब हमें तबलीग करेंगे जी। शिरोज साहब कोई तबलीग करेंगे आप? शरोज साहब बोले अम्मी ने मुंह पे हाथ रख दिया, मारती तो नहीं अम्मी? आवाज आ रही? जी आवाज अब आई है जी, फरमाएं जनाब। नहीं, मैंने कोई तबलीग नहीं करनी, अल्लाह माफ करे। ना मैं किसी मिर्जे को मानता हूँ ना किसी को पाता हूँ, समझिए। ये सुनते सबकी हैं, करते अपने, नमाज अपनी सही। पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान भी अच्छा अपना पढ़ते हैं, नहीं इस सही चीज का है। तो कोई थोड़ा सा फैसला करें कि उलमा की इत्बा हमने करनी है कि नहीं। मेरी बात सुने ना, अल्लाह माफ करे, जब हमने मरना है ना, हमने किसी मिर्जे ने आना है हमारी जगह पे, नहीं ना मिर्जे की बात नहीं कर रहे, फिर वो ना किसी आप वो मुफ्ती ने पहले आना जो है, आए ना थे किसी उलमा ने उन आना जैसे है। ही काम कर रहे हैं आप। ठीक है। देखिए सवाल गंदुम जवाब चना तो ना करें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उलमा की इत्बा हमने करनी है कि नहीं। कुरान तो कहता है, अल्लाह तो कहता है करनी है, अब आप क्या फरमाते हैं? जिनकी करनी थी वो उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। किनकी करनी थी, किनको फॉलो करते हैं, कोई थोड़ा सा बताएं कोई वो हमें। इस दुनिया से चले गए, अच्छा जो दुनिया से चले, जो जिंदा है हाँ। उनकी नहीं करनी। बस बंदा ही वही सही था जिसको हम फॉलो करते थे, बंदा कौन सा बंदा? जो फोत हो गया, कौन फोत हो गया? डॉक्टर इसरार साहब अच्छा डॉक्टर असरार साहब, अच्छा जी।
कभी कभी हमको तो सुन सिर्फ लेते हैं। एक अल्लाह ने सिर्फ एक बंदे की इत्बा का कहा था। नहीं देखे ना, जो हमें दिल को जो सही लगेगा हमने तो उसकी माननी है ना। वो तो ठीक है भाई, 1400 सालों में सिर्फ एक बंदा ही आपको ठीक लगा है, मैं तो ये बस पूछता हूँ। देखे ना, अब बंदे जिससे मोहब्बत हो जाए, अब हर किसी से थोड़ी ना लगा नहीं, हो अल्लाह जाता ने है। तो नहीं कहा कि जिससे मोहब्बत हो उसकी तुमने इत्बा करनी है, अल्लाह ने तो ये कहा ही नहीं है। अब देखें, बात ये इसका है मतलब है कि आप अल्लाह की नहीं मानते, आप नहीं, अपने नफ्स की मानते हैं। मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मुसलमान ही नहीं है जब अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह ने कहीं कुरान में कहा है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी बात मानना, बस जो हमें सही लगेगा हम तो उसकी मानेंगे ना। भाई। वो तो ठीक है यार, आजकल के उलमा हजरात का जो सिस्टम मेरी चल रहा मेरी है, बस जान हमें मेरी पता है सारा। जान और मेरी जान, बात सुने। हाँ अल्लाह ने जी। कहीं कहा है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी बात माननी है, दूसरों की नहीं अल्लाह ताला ने माननी। तो कहीं नहीं कहा। नहीं ना कहा, इसका मतलब है आप अपने नफ्स की बात मान रहे हैं, फिर अल्लाह की तो नहीं मान रहे ना। मैंने तो ऐसा आपको ही है ना। बताया, अब तो हम किसी को भी नहीं फॉलो करते, बस सुन लेते हैं सबको। ओ यार, फिर वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखिए जी, बोलो, ऐसे बोलो, ना करें। बोलो। देखिए मैं आपसे कितने प्यार मोहब्बत से भाइयों की तरह बात कर रहा हूँ कि नहीं है? नहीं, मैं अच्छा, तो उस्ताद गलत गलती नहीं की थी मेरे भरा। अच्छा, यार एक उस्ताद मिनट भाई, मोहतरम कोई ये ना नीचे बोले कह बीच रहे में। थे, ये यार नीचे कोई ये ना भी बोले कह रहे यार। थे। यार उस्मान एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ जी, अच्छा देखें, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने जब नहीं कहा तो इसका मतलब आप अपने नफ्स की इत्बा कर रहे हैं ना मेरे भाई। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल, मान बस लेता हूँ मैं। यही मैं कह रहा हूँ कि मेरी जान, अल्लाह की बात माननी है, नफ्स की बात नहीं माननी। नफ्स जो होता है वो है शरीर, वो हमें गलत चीजों की तरफ लेके चलता है। और नफ्स के बारे में अल्लाह ने हमें बता दिया कि ये शैतान है कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, मिनल जिन्नति कि जो तुम्हारे सीनों के अंदर आके वसवसा डालता है, यानी वो ही है ना, नफ्स है। अंदर से एक पुकार आती है कि ये काम करो। तो कहा कि वो शैतानों जन्नात के अंदर भी हैं और इंसानों के अंदर भी ऐसे हैं जो वसवसा डालते हैं कि तो ये नफ्स की इत्बा हमने नहीं करनी। और फिर अल्लाह ने बार बार कहा कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है शैतान, और इसके खुतवात के ऊपर नहीं चलना, इसके नक्शे कदम के ऊपर नहीं चलना। तो मेरे भाई शैतान के नक्शे कदम पर तो नहीं ना चलते जी। नहीं, शैतान जो है क्या कहते हैं, आप शैतान को उनके साथ तो मुखातिब ना करें ना। नहीं, जब आप नफ्स की इत्बा करोगे वो शैतान की तरफ से है ना, कि अल्लाह ने उसका हुक्म नहीं दिया आपको नफ्स की इत्बा, वो शैतानी काम ही है ना, शैतान की इत्बा ही है ना। नहीं, आप उनको उनके साथ तो मुखातिब ना करें ना। किन को किन के साथ मुखातब ना करें? आप शैतान को डॉक्टर इसरार साहब के साथ मुखातिब नहीं, करें। मैं डॉक्टर इसरार की तो बात कर ही नहीं रहा, वो तो आपने की है। हाँ जी, आपने मुझे मैंने पूछा तो ना आपकी किसको बात फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप हम- शैतान की तबाह कर रहे हैं, कि आपके नफ्स के अंदर से जो आवाज आती है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो नहीं कहा। ये तो बात सही है, अल्लाह ताला ने तो कहीं भी नहीं कहा। ऐसा ही है, बस ये बात एक छोटी सी समझानी थी। और अगर ये भाई भी मेरे देखिए, समझ आ जाए तो मेरी बात ठीक, सुने, मेरी ना बात सुने, समझ आपकी आए तो बात- फिर भी कोई मेरी मसला बात नहीं, सुने, आपकी बात क्योंकि काट रहा हूँ, मुकल्लिबुल माजरत कुलूब के अल्लाह साथ। पाक की जात है, मैं नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचा सकता हूँ। अल्लाह देखें, मेरी बात पाक सुने, मेरी बात सुने। सूरा अल बकरा में फरमाता है, अल्लाह का पैगाम सुने खामोशी जी से जी, सुन। हाँ जी, बोलो। अल्लाह का पैगाम जब आए ना तो खामोशी से सुनते हैं। अल्लाह फरमाता है वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कहा कि शैतान के खुतवात की तबाह मत करो क्योंकि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये शैतान के खुतवात हैं जो तुम्हारे नफ्स की चालें हैं, जो नफ्स की पैरवी करते हैं ना, वो खुतवाते शैतान पर चलते हैं। ठीक है, मैंने अपना पैगाम देना था, दे दिया। नहीं, अब आपको समझ मेरी आ बात जाए सुने, तो फिर मुझे भी समझ आ गई, मुझे ठीक, समझ आ ना गई। समझ आए तो फिर भी ठीक, कोई मसला नहीं। मुझे समझ आ गई। अब हम इनको छोड़ के अब हम कुरान पाक हदीस पे अमल करें तो वो ज्यादा बेस्ट नहीं है? बेहतरीन हो, ये तो मैं कह रहा हूँ कुरान पे ही अमल करने का तो कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो करते हैं, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ना करते हैं, देखो ये अब आप कर रहे हैं गलत बयानी। देखिए, अब माइक कुरान म्यूट पे करें, सुने, एक मेरी मिनट बात माइक सुने। म्यूट नहीं नहीं नहीं, एक एक मिनट माइक म्यूट तो नहीं, करें, नहीं, आप नहीं, उलझ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं नहीं मेरे उलझ साथ। ना, अल्लाह माफ करे, माइक मैं म्यूट कुछ तो करें ना।
माइक म्यूट। अब यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने सबके सामने कहा कि मैंने अपने नफ्स की मानी है और मैंने गलत किया है, मैंने कुरान की नहीं मानी। माइक म्यूट करें ना यार, कुरान की ओ मानी भाई है तो माइक उनको म्यूट करें, मेरी छोड़ा बात ना। अभी कंप्लीट नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कहूंगा, आप बोल लीजिएगा। मेरी आदत ही नहीं है ऐसी भाई, मेरा तरीका कार ये है, मैं अगले बंदे को कहता हूं कि भाई अब मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब आप बोल। अब आप उलझ रहे हैं, अब आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तस्लीम किया कि बाकी मैं नफ्स की इत्बा कर रहा था, अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। अभी आप क्या कह रहे हैं, नहीं मैं तो कुरान की इत्बा करता हूं। गलत झूठ बोल रहे हैं ना, ये सरासर झूठ बोला है आपने। कुरान की कब इत्बा कर रहे हैं आप? तो तस्लीम कर चुके हैं जी, मैंने अपने नफ्स का इत्बा करने वाला हूं, मैंने कुरान की नहीं मानी, अल्लाह की इत्बा नहीं मैं कर रहा। आपने अभी तस्लीम किया, रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सुन लेंगे रिवर्स करके, आपने कहा है ये। अब आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मैं तो कुरान की इत्बा करता हूं, ये झूठ है। अब आप बोल लें जी, बोल। मैंने ये कहा है कि कुरान पाक को हमने पढ़ा है, तो इन ये जो है हमारे जो बने हुए हैं आजकल हर फिरके वारियत में, हमने इनको छोड़ा है। ये तो हमें गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं ना, उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसा माइंड वो करते हैं बंदे का कि बंदा उनके उनके रास्ते पे चल पड़ता है। वो दीन का रास्ता सही नहीं सिखा रहे ना। दीन आप वसल्लम ने क्या छोड़ा, उनके रास्ते पे हम नहीं चल रहे। शाह जी देखें, वाकई ये बंदा सही कह रहा है। अब हमने इनको औरल सेक्स के मतलब नहीं बताया, अम्मी के 4 शोहरों के बारे में या नहीं बताया। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, असल नहीं भाई, नहीं भाई, असल में मुझे भी पता है कि मेरा मुखातब कौन है और क्या है और कैसा है। असल में एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं साइलेंट लिसनर्स को, जो कि अभी यूट्यूब के ऊपर भी सुन रहे हैं, जब ये वीडियो जाएगी तो वो सुनेंगे, तो उन तक ये मैसेज डिलीवर करना असल मकसूद होता है। हमें भी पता होता है हमारा मुखातब कैसा है, उसने तो मानना ही नहीं है। ये तो हमारा शुरू दिन से ये है कि जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो जो हमारा मुखातब होता है वो हमारा मतमय नज़र नहीं होता, हमारा मतमय नज़र हमारे लिसनर्स होते हैं कि जिन तक हम एक पैगाम डिलीवर करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई अब आप कह रहे थे कि आजकल के जो उलमा हैं ये हमें गलत तरफ लेके जा रहे हैं, तो कोई बताइए कौन से उलमा गलत तरफ लेके जा रहे हैं, कोई 2-4 मिसालें दें तो मैं ना यार ऐसे नहीं, बीच पे नहीं बोले, गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। देखें, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कहूंगा, आप बोल लीजिएगा, ये गलत बात है। अच्छा, मैं ना अब डायरी ये ले लेता हूं, मैं लिखता हूं और मुझे आप लिखवाइएगा कि फलां आलिम है, उसने फलां गलत बात की है, उसका सबूत लाजमी देना है, बगैर सबूत के नहीं। बगैर सबूत के अगर आप कहेंगे वो इल्ज़ाम हो जाएगा। तो इल्ज़ाम जो होता है ना, इल्ज़ाम और बोहतान, उसकी सजा 80 कोड़े कुरान ने बताई है। उसको गवाहियों के जरिए, दलाइल के जरिए आपने साबित करना है कि हाँ ये बात, हाँ, उसको सुनने के बाद फिर मैं आपको कहूंगा कि बाकी वो बात गलत है कि नहीं है। चलें जी, अब आप बोल। हाँ जी, मैंने देखे, मेरी बात सुना है, मैंने सोशल मीडिया पे सुना है, हमारे माशाल्लाह से कराची के हैं बड़े इलाज रज़ा कादरी साहब, उन्होंने एक नमाज का बताया, नमाज गौसिया का, ठीक है। अक्सर उनकी वीडियोस आ जाती हैं, हम सुन लेते हैं और हमें बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है उनकी बातें, ठीक है। उसके अलावा एक बस एक चीज ऐसे नहीं, 2-3 नहीं, माइक म्यूट कर। हाँ जी, जरा इसके बारे में मुझे बता देना, भाई माइक म्यूट करेंगे तो बताऊंगा ना, एक एक करके ना, एक एक ऐसे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने सुना है, पहले तो आप सुनने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हदीस लिखी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। आप कह रहे हैं मैंने सोशल मीडिया पे सुना है और उस सुनी सुनाई बात को आप मेरे सामने पेश कर रहे हैं, आपने उसकी कोई तहकीक नहीं की, कोई रिसर्च नहीं की, तो अल्लाह के नबी आपको कज़्ज़ाब कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं। पहली बात तो ये आप नोट कर लो। अगली बात आप कह रहे हैं कि इलियास कादरी ने नमाज गौसिया का तरीका बताया है
ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. طریقہ نہیں یار بتایا بات انہوں نے سنیں, بتایا. غلط بات ہے, مجھے بات کریں کرنے آپ. دیں. غلط بات ہے بھائی, غلط بات ہی غلط ہے نا, یہ طریقہ نہیں ہے گفتگو, یہ بات کا طریقہ نہیں ہے. مجھے میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ بول لیجیے گا. نہیں کوئی آپ مسئلہ غلط بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مائک میوٹ کر لے, اپنے وقت میں جو مرضی کہیے گا, اپنے وقت میں آپ بھلے گالیاں نکال لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے وقت پر. اچھا مائک میوٹ رکھیں. اگلی بات یہ کہ مولانا الیاس قادری نے نماز غوثیہ کا طریقہ بتایا ہے, وہ کون سی ویڈیو میں ہے, وہ ویڈیو بھی آپ سنائیے اور ہمیں بتائیے کہ کون سی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ نماز غوثیہ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہاں پہ منع کی ہے کہ نہیں یہ والی نہیں پڑھنی, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ علماء ہمیں غلط بتا رہے ہیں. بھائی غلط اور صحیح کی نشاندہی تو وہی کرے گا نا جس کے پاس علم ہوگا. تو یقینی سی بات ہے آپ کے پاس علم ہوگا پھر قرآن اور حدیث کا, تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بات ہے. بھائی تو اس کو آپ نے غلط پھر ثابت بھی کرنا ہے کہ دیکھو جی مولانا الیاس قادری نے طریقہ یہ بتایا ہے, قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے. چلیں جی اب آپ بول سکتے ہیں. نہیں اگر دیکھیں غوث پاک وہ آئے بعد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پہلے, اگر نماز غوثیہ ہوتی تو اس ٹائم سے چلتی نہ آتی پھر. یہ میرا سوال ہے, آپ مجھے اس کا جواب دیں. اچھا ٹھیک, یہ اب یہ ایک دوسری چیز ہے. میں نے دوسری چیز کی طرف نہیں آنا, پہلی چیز کلیئر. نہیں بھائی مائک میوٹ, بھائی غلط بات غلط ہے, بات غلط ہے نا. یہ دیکھیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے نا بولنے کی, یہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک. آپ تو انسانوں والے معاملے نہیں ہیں تم لوگوں میں یار, کم از کم انسان تو ہونا یار. بھلے تم لوگ جاہل ہو, جڈ ہو, بھلے کافر ہو یا جو بھی ہو, انسان تو ہو کہ نہیں. انسانیت کے ناطے سے کم از کم یہ زیب نہیں دیتا, یہ گفتگو کا انداز ہی نہیں ہے تم لوگوں کا. اچھا تو بات یہ ہے کہ پہلی بات کمپلیٹ کریں گے, پھر دوسری بات کی طرف ابھی نہیں آنا. پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ مولانا الیاس قادری نے کہاں پہ کہا ہے, وہ ویڈیو بھی سنائیں, ساری دنیا سنے گی. اگلی بات اس کو آپ نے غلط پھر قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ علماء کرام غلط ہمیں لائن پہ لگا رہے ہیں. بھائی غلطی کا فیصلہ تو وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. غلط اور صحیح کا فیصلہ ایسے کو کیسے کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ بھائی ادھر دیکھو, میں کہتا ہوں کہ دیکھو جی یہ کھڑکی جو لگائی ہے اس نے ویلڈنگ ٹھیک نہیں کی, تو بھائی میں اس کو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو یقینی سی بات ہے میرے پاس وہ ویلڈنگ کا علم ہونا ضروری ہے, میرے پاس فزکس کا علم ہونا ضروری ہے, نہیں تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے جب اس کا علم ہی نہیں ہے میں ایسے کیسے غلط. کوئی ڈاکٹر ٹیکہ لگا رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ ٹیکہ اس نے غلط لگایا ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے یہ. او بھائی کیا تو ڈاکٹر ہے؟ کیا تو نے MBBS کورس کی ہے؟ کیا تو انجیکشن کا باقاعدہ طریقہ جانتا ہے؟ غلط اور صحیح کا فیصلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے علمی دنیا کے اندر غلط اور صحیح کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. تو اب آپ بھائی میرے ثابت کریں گے, یا پھر آخری صورت یہ کہ آپ یہاں معذرت کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے غلط بیانی کی ہے اور میں نے علماء کے اوپر بہتان لگایا ہے, میں نے بس سنی بات کو آگے پیش کیا تھا, تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کریں گے. اور یہ کرتوت جو ہے نا آپ کی مائک اوپن کرنے والی اور کوئی بات کر رہا ہو تو بیچ میں ٹوکنے والی, اس کرتوت کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جانوروں والی اور قادیانیوں اور کافروں والا یہ طریقہ ہے. چلیے اب آپ بول لیں. ہاں جی, میں نے بہتان کو نہیں لگایا, ٹھیک ہے, سمجھ گئی ہے. میں نے نماز غوثیہ کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ سے میں نے کوشچن پوچھا ہے اور آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئے. میں نے یہ پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے, ٹھیک ہے, یہ اولیاء کرام, اگر اس ٹائم اگر نماز غوثیہ ہوتی تو اس ٹائم سے چلتی آتی اور ہم سب پڑھتے. اس ٹائم کیوں نہیں تھی؟ آپ بات کیا ہو رہی ہے, آپ بات کو کہاں گھما کے لے کے گئے ہیں؟ اور قرآن پاک میں کہیں لکھا ہوا ہے نماز غوثیہ کا؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مجھے ذرا دکھائیں
दिखाएं ज़रा, यहाँ पे लगाएं आप अपनी तस्वीर की जगह पे, अगर होगी मैं इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, मुझे इस चीज़ का ज़रा जवाब दें। अच्छा जी, अब आपने मुझे देखिए, ये तरीका होता है आपकी गुफ्तगू में, हम फिर बोल रहे हैं, देखिए फिर बोल रहे हैं, मैं आपकी गुफ्तगू के अंदर बोल रहा हूँ कोई, ये इंतहाई बदतमीज और यानी चवलियां किस्म की दुनिया ना इकट्ठी की है इस मिर्जा कादियानी ने और मिर्जा जूनियर जेल में, इंतहाई चवलियां ना अपने गिर्द इकट्ठे किए हुए, खुदा की कसम, यानी गुफ्तगू का अंदाज तक नहीं आता, अल्लाह की कसम है, इंतहाई बदतमीज और घटिया किस्म की कौम इन दोनों मिर्जों ने अपने गिर्द इकट्ठी की हुई है। अच्छा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये दूसरी बात है, अभी पहली बात पे हमने रहना है, ये दूसरी बात है जी, कुरान में दिखाएं कि नमाज गोसिया है कि नहीं, ये दूसरी बात है। अभी पहली बात क्लियर होगी तो फिर हम दूसरी बात की तरफ आएंगे, पहली बात जब तक कंप्लीट नहीं होनी दूसरी बात की तरफ हमने आना ही नहीं है। पहली बात ये थी कि मौलाना इलियास कादरी ने कहा है जी नमाज गोसिया का ये तरीका है, वो वीडियो सुनाएं, और दूसरा उसको फिर गलत आपने साबित करना है कुरान और हदीस से। चलें जी, मैं अब माइक म्यूट करता हूं, अब आप बोले। अरे भाई मेरे भाई, बात ये है, उसने आप खुद जरा यहीं पे चला लो वीडियो, चलाएं जरा वीडियो, सर्च करो, अभी निकल आएगी नमाज गोसिया के बारे में। अल्लाह माफ़ करे, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ठीक है। उन्होंने जिक्र किया, वही मैंने आपसे पूछा है, हमारे शायद इल्म में ना हो कि शायद हो, आप मुझे बताएं कहीं है, अगर है तो मैं इंशाल्लाह, भी मैंने इशा का टाइम होने वाला है इधर, ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा उसके बाद, इशा की नमाज के बाद, अगर कहीं जिक्र है, अगर जिक्र होता है तो हम कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो हमें भी कहीं नज़र आता। मैंने आपसे ये पूछा है शाह साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे मिला दी है, लानत भेजता हूँ मैं मिर्ज़ा कादियानियों पे। बात कंप्लीट करके अगले को इजाजत दिया करे, मुझे क्या पता मेरी कि बात मैंने कंप्लीट बोलना हो है गई है, कि मेरे चुप पास रहना है। आपके पास, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैंने अभी खाना वगैरह भी खाना है, तो मैं साथ गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ। ओ भाई, मुझे बोलने की इजाजत है, बता दिया करें, फिर मैं बोलूंगा। बोलो शाह साहब, बोलो बोलो बोलो, 5 मिनट देने, फिर मैं जाना, फिर चले माइक म्यूट करें। 5 मिनट क्या, आपके पास 5 दिन भी हो और 5 महीने और 5 साल भी हो तो आपने यही करते रहना है, और यही आपको यहाँ पे बैठा दिया जाए, आप पूरी रात यही काम करेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने दूसरी बात की तरफ उस वक्त तक नहीं आना जब तक पहली बात क्लियर नहीं होगी। चलें माइक ओपन करें, बताएं। वही आप कह रहे हो ना, जो इलियास रज़ा कादरी साहब ने जो बात की, आप खुद भी वीडियो चला के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने जिक्र किया या नहीं किया। ये देखिए नीचे जरा कमेंट पढ़े, वो कह रहे हैं जी जिक्र किया, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों बुतान लगाऊंगा किसी के ऊपर, मैं खुद गुनाहगार सा बंदा हूँ। मैं आखिरी में ये बात करूँगा, हम सब को अल्लाह पाक अच्छा मुसलमान, नेक मुसलमान बनाए, बस कुरान और हदीस पे अमल करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की, ठीक है, अहले बैत वाला मानने वाला और खतब नबूवत पे ईमान रखने वाला बनाए, बस। अल्लाह हाफिज़। ये ज़रा नमाज गोसिया के बारे में सर्च कीजिएगा, फिर मैं फॉलो कर लेता हूँ आपको, फिर जवाब दे दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। हाँ बस अल्लाह हाफिज, बस यही अल्लाह हाफिज ही है। तो मेरे भाई वेले नहीं है ना हम, मेले वेले नहीं है ना हम, आप लोग ऑनलाइन बैठ के टिकटॉक पे मड्डी कमा रहे हो, हम इधर वेले में, इधर 100 काम भी होते हैं। अल्लाह ही हाफिज है भाई जी, अल्लाह ही हाफिज है। तो जब आपके पास दलील होगी ना, एक तो इलियास कादरी का वो बयान लेके आना है, और दूसरा उसको कुरान हदीस से फिर गलत साबित करना है। दावा आपने किया जी उलमा में गलत साइड पे लेके चल रहे हैं, ओ भाई ठीक है, मैंने आपसे दलील पूछी है, दलील के तौर पे आपने मौलाना इलियास कादरी की ये नमाज गोसिया का जिक्र किया, भाई साबित आपने करना है कि मैंने करना है, दावा आपका दलील मेरी, ये क्या तरीका है? ये तरीका ये कादियानी भी यही कहते हैं, दावे वो कर देती हैं। मुझे तो लग रहा है यार आपको ना
गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे लग रहा है कि आप अपनी करतूतों से लगता है कि कादियानी है, मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले हैं, मुझे लग रहा है। तो ये है कि करतूतें जो है ना आपकी टोटली कादियानियों वाली मिल रही हैं, कि यानी वो भी ना दावे कर देते हैं, दलील अगले बंदे को कहते तुम दो। भाई दावा आपने किया कि मैंने किया है कि मौलाना लियास कादरी ने अपनी वीडियो अब दौड़ के, हैं? ये करतूत है ना, यही करतूत है। ये नीचे लिख रहे थे, जब पकड़े जाएं तो फिर दौड़ने की करते हैं कि भागना ही बहादुर है। ये है सच की अलामत कि बस वड्डी वड्डी छड़ोल छोड़ के निकलने की करो, बस भागने की करो। लख दी लानत। सलाम वालेकुम शाह साहब। जी ये नीचे लिख मेरे रहा भाई था, शाह जी ये नीचे लिख रहा था कि हम कादियानियों के पास भी उनकी तबलीग सुनने जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है इसमें। और ये मुझे लग रहा है कादियानी बंदा, कादियानी है, जो कि मैं तो एक अरसे का कह रहा हूँ कि ये कादियानी या राफजी या मुल्हिदीन, ये मिर्जा जूनियर जेलमी को कहते हैं जी हम उसके फॉलोअर हैं। यानी कि और मुसलमान तो आज तक हमें कोई मिला ही नहीं है, कोई हो मुसलमान और इन तीन तबकों में से ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी शाह जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। शाह जी मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, ये जो सिलसिलाकार चल रहा है ना, अच्छा हाजी ऐसे हसन भाई एक आप मिनट, गुस्से हाजी में हसन ना भाई आया एक करें। मिनट, हाजी हसन भाई एक मिनट। जी जी आप वेट करें, आपसे पहले विकी अली मरज़ई साहब बैठे हुए हैं, पहले इनसे बात हो रहा है। अच्छा ये जी, हाँ विकी जी, हाँ अली, जी ये विकी अली साहब। मरज़ई साहब। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी काफ़ी देर से मैं आप लोगों की डिस्कशन सुन रहा हूँ और जी बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ डिस्कशन आप लोगों की रही और बड़ा महसूस हुआ मैं ये सारी बातें सुन के। कुछ चीज़ आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही, कुछ क्या हुआ है? इधर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले जहाँ नहीं मैं आपके फेस टू सिग्नल फेस उन रेड चीज़ों हो को रहे क्लियर कर हैं सकूँ। या मेरी तरफ से मसला है कोई? कुछ के बाद नहीं समझ आई। तो हो सकता शायद है आपके ठीक है, उधर से हो रही है आवाज़। विकी साहब कुछ के बाद आपने अभी क्या आपको कहा सही है? आवाज़ आ रही है? अब आवाज आई है जी। मेरे कुछ सवालात थे तो मैं वो चाह रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले जहां मैं फेस टू फेस उन बिल्कुल बातों को ठीक हो कर गया। सकूं जब क्लियर। सवाल करें, नंबर 1 पहला सवाल क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बचपन से ही नहीं सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। करना, सवाल करें। सवाल होता है मुख्तसर तकरीरी अच्छा सवाल, ओके मैं पॉइंट पे आ जाते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। फतावा रज़विया के अंदर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान ये फरमाते हैं कि सबा सनाबिल जो है वो बहुत बेहतर किताब है, उसके बारे में फरमा रहे हैं। और सबा सनाबिल में ये वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और चिश्ती रसूल अल्लाह। तो इसके बारे में मैं चाह रहा था कि कुछ आपसे इसके बारे में ज़रा मालूमात मुझे तफसीली बताएं ज़रा इसके बारे में कि ये कैसा है। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा फतावा रज़विया का भी हवाला दे दें, सबा सनाबल का भी हवाला दे दें तो जी जी उसके सारे हवाले मौजूद हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं और वो चाहेंगे तो आप किताब से डायरेक्ट लाइव में शेयर भी कर सकूंगा। मेरे पास मौजूद है जी। जी वो अभी मुझे बता दें, मेरे पास किताबें रखी हैं, मैं निकाल लेता हूँ जी। हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी मुझे जी। फतावा रज़विया के अंदर ही ये मेरे पास वो देखे वो लाल रंग का रखा हुआ है, अब मुझे बताएंगे मैं अभी वो निकाल लेता हूँ। और सबा सनाबल का भी हवाला दे दें, सबा सनाबल भी रखी है, मैं निकाल लेता हूँ जी। यही दो किताबें हैं और इन्हीं दोनों किताबों में वाज़ेह तौर पे ये बयान मौजूद है कि उसमें ये दावा किसी एक बंदे का दावा नहीं है और ये दावा कोई ऐसा आम दावा भी नहीं है, ये बाकायदा तौर पे इस पे बहुत जरा ऑलरेडी मौजूद है और मतलब जमाने से चला आ रहा है। ये कोई आजकल की या कल की या परसों की बात नहीं है। मुझे हवाला दे दें, मैं अभी किताब निकाल लेता हूँ। तकरीर नहीं सुननी आपकी, आप कहानी सुनानी शुरू कर दीजिए। कहानी तो नहीं ना सुनाते होते जी, कहानियां तो बड़ी आप मुझे मौका दीजिए, मैं अभी मैं निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है के सारे खामोश हो जाओ भाई, चलो हवाला निकालने लगे, कोई नहीं बोलेगा।
हवाला आ गया उस्ताद जी? हाँ, नहीं नहीं, चुप हो जाओ, हथ बन के खलो जाओ, बस कहानी सुनी दी होंदी है। अच्छा ये बता दें कितनी देर हमने खामोश रहना है विकी साहब? हेलो जी सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं ज़रा हेलो। ये निकाल रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो इस बीच मुझे कम से कम 1 से 2 मिनट का वक्फा दें, ताकि अच्छा, मैं ये- रेफरेंस जो है वो प्रॉपर निकाल के फिर आपको हो सके तो हाँ, 2 स्क्रीनशॉट मिनट, शेयर कर सकूँ, अभी या फिर आपको वो पढ़ के 35 सुना मिनट हुए सकूँ। हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दरकार रहेगा। 35 मिनट हुए हैं, 2 मिनट चाहिए आप, ठीक हो गया। नहीं 2 से उस्ताद जी, 3 मिनट मुझे दम चाहिए, तक नहीं ताकि मैं चाहिए। डिटेल निकाल के फिर आपसे बात कर सकूँ। हाँ ठीक है, 3 मिनट कर ले, ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक। तो आप जल्दी इंतजार जल्दी। फरमाएं, या अगर चाहें तो आप किसी इंतजार दूसरे कर कॉलर को ले लें, मेरा मैं फिर आपसे दोबारा सवाल- कनेक्ट चलो करता हूँ। दूसरे ठीक है, कॉलर फिर को ले इंतजार लें। करें। बिल्कुल ठीक, दौड़िएगा ना, बस इधर ही रहिएगा, मैदान में रहिएगा, दौड़ ना जाइएगा, क्योंकि अस्सलाम दौड़ेंगे वालेकुम। फिर तो हम आपको तलाश ही करते रहेंगे ना, किधर गए थे कोई विकी अस्सलाम साहब। वालेकुम। इतने कीमती हवाले देने थे, विकी साहब ने दौड़ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम सर। जी आप अरसलान साहब, आप क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे बस पूछना था कि नमाज पढ़ते हैं तो ये रफ़ा यदैन का कुछ बता दें मुझे, ये है या नहीं है, ये थोड़ा सा बता दें। हाँ। अच्छा जी मोहतरम, माइक म्यूट करें ना। ओके, एक मिनट। अरसलान साहब सवाल कर रहे हैं कि रफ़ा दैन, अब रफ़ा दैन क्या है, इसका तो इन्होंने कोई बताया नहीं है। एक तो रफ़ा दैन नमाज की इब्तदा के अंदर होता है, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा के वक्त, वो तो सबके नज़दीक ही जायज़ है। और इसके अलावा 2 रफ़ा दैन और, एक है रफ़ा दैन के रुकू से आते हुए, रुकू से उठने के बाद का रफ़ा दैन, और एक है सजदे में जाते हुए, एक वो रफ़ा दैन। तो आप पता नहीं कौन से रफ़ा दैन का सवाल है। जी अरसलान साहब बता दें जरा। सर मैं वही पूछ रहा था, नॉर्मली 3 जब रफ़ा दैन हम है, नमाज पढ़ते 3 हैं, रफ़ा दैन। सही है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो रुकू में जाने के टाइम में हाथ नहीं उठाते ऊपर, सही है। फिर रुकू से उठ के फिर सजदे में जाने के टाइम में हाथ नहीं उठाते, सही है। और जो हाथ उठाते हैं वो रफ़ा यदैन है, और ये कुछ थोड़ा सा मुझे बता दें, इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे इल्म में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, बहुत मेहरबानी होगी। ठीक, तो बहरहाल ये है कि अहनाफ के नज़दीक सिर्फ नमाज की इब्तदा के अंदर रफ़ा दैन करने की इजाज़त है। दूसरा खिलाफ सुन्नत। जी जवाब दे दिए। मतलब कि दूसरा सही है, मतलब बस स्टार्ट में करना है, उसके बाद नहीं करना। जी जी खिलाफ सुन्नत। सही है, बहुत मेहरबानी सर। ये तरीका होता है ओके, सवाल अल्लाह हाफिज़। का। सब भाइयों को जो अल्लाह साइल हाफिज़। होता है ना, वो तकरीर नहीं करता, वो मुख्तसर सवाल करता है। अगर अगला आलमे दिन जवाब देता है तो वो चुप हो जाता है। जो उलझने वाले लोग होते हैं, सही, मैं एक उनकी अलामत ये होती है, अरसलान का माइक म्यूट करिएगा। एक उनकी अलामत ये होती है कि वो सवाल बड़ा ही लंबा करेंगे, तकरीर 5-10 मिनट की वो सवाल। दूसरा ये है कि वो बार बार बात में टोकेंगे, जब हम जवाब देते हैं बीच में टोकेंगे। और अगली बात ये होती है कि जब जवाब उनको दे दिया जाए, वो उस पर मजीद सवाल कायम कर। ये उलझने वाले लोग होते हैं, ये लोग मुखलिसीन नहीं होते। और ये तबका होता है या कादियानियों का, या एथीस्टों का, या इस्लाम मुखालफ जितने भी लोग हैं उनकी तरफ एक नुमाइंदे होते हैं, जो फेक आईडीज बना के आते हैं लोगों को उलझाने के लिए, और मुसलमानों के ज़हनों के अंदर शकूक और शुबात पैदा करने के लिए। और जिसका कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया था कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये सीनों के अंदर वसवसा डालते हैं, जन्नात भी हैं और कुछ लोग भी हैं। तो ओए होए 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 4 मिनट हो गए हैं जी।
विकी साहब 3 मिनट पहले 2 मिनट आपने मांगे, फिर 3 मिनट मांगे। जी सर, एक और रेफरेंस, जी मैं इधर ही मौजूद 4 हूँ मिनट हो और गए, मेरे पास 4 एक मिनट हो रेफरेंस, गए। अभी कितने लेकिन मिनट चाहिए देर आए बता लेकिन दें। दुरुस्त तो आए ना। मिनट बता दें कितने मिनट चाहिए आप। बस मैंने निकाल लिया है, रेफरेंस मेरे सामने मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं मजीद उसको फिर पढ़ के सुना दूँ। अच्छा, एक रेफरेंस जी लिखवाएं। जी किताबें 2 हैं, रेफरेंस भी 2 ही चाहिए। जी किताबें 2 हैं, तो जितना मौसूल हो रहा है असल में मवासलाती राब्ते जो है ना, आप देख रहे होंगे कि सिग्नल डिस्टर्ब है। तो मैं असल में डिजर्ट एरिया में हूँ यहाँ सऊदी में, तो यहाँ सिग्नल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं वो रहते। सिग्नल प्रॉब्लम तो हमारे इधर पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया के अंदर नेट बड़ा अच्छा चल रहा है। आपके उधर बस सऊदीया ऐसे तो ही। अच्छा, मैं रह गया ये हूं, उधर तो इतना फवायदुस फास्ट नेटवर्क सालिकीन, है, इतना फास्ट नहीं नेटवर्क मैं है असल में मैं डिजर्ट एरिया में रहता हूँ ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रिमोट एरिया में हमारी ये कंपनी है नहीं हमको, तो डिजर्ट एरिया से मेरा था। उधर कोई और बंदा अच्छा, मैं अब पेश करता है, ये मैं नहीं खरीदा है एमी छोड़ो नहीं छोड़ी, मतलब ये कि कोई ऐसा उधर के जो समझ है। अच्छा चले जी, हवाला लिखो सर, आवाज मौसूल हो रही है आपको मेरी? जी, बड़ी आवाज आ रही है, ये बोले सबे सनाबिल है और ये इसका 133 पेज नंबर है। एक मिनट आपके पास किताब मौजूद है? आप खोलें जरा। 133 133। अच्छा, मतबूआ इसका क्या है? अब मैं चाहूंगा कि आप अपने पास जो मौजूदा किताब है आपके पास, वो आप खोल लें। मतबूआ क्या है? देखिए, मतबूआ सनाबिल चारों में ही। चारों भाई, ये कौन सा मतबूआ है? चारों ये मतबूआ है चारों। अब मतबूआ से आपकी क्या मुराद है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन ये चारों आप यकीनन बेहतर समझते होंगे इसके बारे में, तो आप ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे। शादी इल्मी किताब भी एवं नहीं लभदा फिर भाई चारम जिल्द होती है, मतबूआ नहीं होता। अब मतबूआ से उनकी क्या मुराद है मैं नहीं समझ पाया ना, जब ही तो ऐसे तो नहीं मिलता जिनमें जेल नहीं कहता। मेरे जो स्टूडेंट है वो मैं कहता वो इमाम बुखारी से भी बढ़ के अच्छा ठीक है। ये मकतब कादरिया है लाहौर से, और हजरत मीर अब्दुल वाहिद एक गांव में कहता है, मेरे एक स्टूडेंट कौन सा है पहले मतबूआ बता दें, मैं खुद इधर से निकालता हूँ अभी। वो कहता है मेरा एक स्टूडेंट ने पूरे गांव में वक्त डाला हुआ है, मतबूआ वक्त ते आपे पाना जो जाहिल होएगा ਉਹਦੇ वक्त ते पाना ही पाना है। उस्ताद जी मैं चाह रहा हूँ आपको डिटेल बताना, लेकिन शायद आप सुनना नहीं चाह रहे। लाखों उलमा के ऊपर भारी होता है, ये आपको पता है? लाखों उलमा के ऊपर जाहिल भारी होता है, क्योंकि उसने मान नहीं अगर आप थोड़ा सा मौका दें बोलने का। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जाहिल जब तुमसे खिताब करें तो उनको कालू सलामा, उनको को न जाए तुझा तेरा निकल। तो ये इन जाहलों का तो कोई नहीं, कोई सरजमीन ही इन लोगों की। हाँ जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं या मतबूआ मैं गलत बताइए जगह ना, आ सुनना गया। तो चाह रहे हैं, मतबूआ ही नहीं बता रहे। मतबूआ बताएं। आप मेरी बात को अगर समझें मतबूआ तो बताएं। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। मतबूआ अब बताएं। आप सुने, मतबूआ बताएं। ये किताब का नाम है सनह सनाबिल, हजरत मीर अब्दुल वहाद बगरामी, और ये मतबूआ बताएं। मकतब कादरिया लाहौर से छपी हुई है। मकतब कादरिया लाहौर। अच्छा रुक जाए, यही मतबूआ होता है? मुझे नहीं पता था, अब आपने मेरे इल्म में इजाफा कर दिया, ठीक हो गया। तो ये इतनी सी बात थी, इसमें इतनी लंबी जरा करने की जरूरत नहीं थी। बस खामोश हो जाए, बस एक मिनट रुक जाए, ये अभी निकाल लेते हैं। मकतब कादरिया जी लाहौर जी। अच्छा, ये मैं अभी निकालने लगा हूँ। ये इनमें से बताइएगा कि कौन सा वाला है एडिशन। जी जी, इसमें से ये जो ब्लू वाला एडिशन है लेफ्ट पर, पहले वाला
ये वाला, अच्छा ठीक लेफ्ट साइड पर, यानी उल्टे ठीक है, हाथ ठीक पे है। शायद जो ठीक आपकी है, तरफ ठीक, से है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे निकालने। अच्छा जी, सफा बिल्कुल, ये तो फरीद बुक स्टॉल है। मकतब कादरिया है ये। तो फरीद दोबारा बुक दिखाएं स्टॉल अपनी है। कंप्यूटर की स्क्रीन, ये नहीं अपने यार, कंप्यूटर की क्या स्क्रीन आप दोबारा दिखा सकते हैं? मेरे साथ मेरे भाई खेल लें तो ना यार, टाइम बड़ा कीमती है। ये देखें, ये वो ही है ना जो आप कह रहे थे, यही है ना? बडग्रामी, ये फरीद बुक स्टॉल है। तो यही सकता आपने है कहा कुछ था ना, छापे। ये वाला, ये एक और ब्लू मुझे नजर आ रहा है, ये इसके बराबर में दिखा ये सकते हैं? ये blue, वाला ये दिखा वाला, चलो सकते हैं एक मिनट उसका मेन ये पेज? डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड। नहीं तो इसका पेज, मेन पेज दिखाएं ताकि नजर तो आ सके, बहुत छोटा नजर आ रहा है। डाउनलोड होके पता चलेगा, थोड़ा साफ ही तो लगो यार, की हो गया है। ये है, ये नहीं, ये भी नहीं है। तो ये तो हामिद एंड कंपनी का है। हाँ, मेरे पास जो छापा है ये है मकतब कादरिया लाहौर। अगर आप ये चाहें तो देख मैं ले, सेंड, आपके सामने ही है, आप जोन सा कहेंगे। अच्छा, ये वाला है शायद, ये वाला हो, ठीक, मकतबा कादरी यही होगा, ठीक। क्योंकि होनी वो चीज चाहिए कि जो आपके पास भी हो और हमारे पास भी हो। क्या तो बात है, जबरदस्त, बात ऐसे ही वो होना चीज चाहिए। समझ आएगी, ऐसे बात समझ नहीं आती, ठीक है। ये है, लगता है मुझे ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना? जी हाँ, क्या बिल्कुल सही ठीक। पकड़ा, पकड़ने में आप बिल्कुल। बड़े माहिर लग रहे हैं मुझे। मैं तो बड़ा माहिर हूँ, आपने अभी हमारी महारतें देखी कब में। अच्छा जी, ये सफा कौन सा है? सफा 133, ये ले जी, 131, 132 और 133 जी, ये आ गया जी। पढ़ें जी, कहाँ से पढ़ना है? पढ़ें जी, ये ले जनाब, ये 133 सफा आ गया, पढ़ें, कहाँ से पढ़ना है? मोहतरम, बड़ा गड़बड़ कर रहा है मोहतरम, आपने जो कहा है वही मतबूआ निकाला है। सफा 133 आ गया, उन रोला ये पढ़ गया कि ये है फारसी में। तो फारसी तो आपके वालिद मोहतरम को भी नहीं आती होगी। हाँ जी, हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? सर, पढ़ेंगे तो फिर ही आवाज आएगी ना, पढ़ेंगे नहीं तो आवाज कहाँ से आनी है? जी पढ़ें, ठीक फारसी है है। जी, तो कौन सी लाइन से पढ़ना है? इसमें ओ भाई, कहाँ से पढ़ना है बताइए? नंबर 8 नीचे से 8वीं लाइन। नीचे से 8वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ये लें, नीचे से 8वीं लाइन पढ़नी शुरू Yes. करें। ये यहाँ से कुद्दीसा जी। सिर्रुहू से यहाँ से पढ़नी शुरू करें। जी पढ़ें जी। बस 8वीं के नीचे वाली में लिखा हुआ है और बड़ा बहुत ही नीचे वाज़ेह अल्फाज लिखे हुए हैं। हाँ, अरे पढ़े 8वीं ना, से आपके मतलब सामने है, क्योंकि मैंने आवाज ये तो बड़ी स्क्रीन कर दी है, पढ़े। हेलो, चले, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मुझे कोई फारसी में महारत हासिल नहीं है, हाँ लेकिन हाँ, फिर भी पढ़े मैं पढ़े। कोशिश करता हूँ। कुदस सरवर हाजिर पोदम के मरवी पेनियत बैद दामर सरवर कदम ख्वाजा नहाद गुफ्त बैस आदम ख्वाजा। नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा पहले करते जाएं। ये क्या है? मैं इसका क्यों बताइए तर्जुमा मुझे। करूंगा? मुझे कोई इसका तर्जुमा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अच्छा, तो अच्छा, सीधी ठीक एक है। चीज देख रहा हूँ, उसमें ला इलाहा बिल्कुल इल्लल्लाह और ठीक चिश्ती है रसूलुल्लाह भाई। वाज़ेह तौर पे भाई- लिखा हुआ है। भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा तो है, लेकिन ये क्या जी, लिखा और हुआ है? अगर हो ऐसी सकता है किताब ये के फारसी- अंदर
भाई सुने तो मेरी बात सुने, अगर ना, ऐसी किताब सुने में ना कोई यार। ऐसा लफ्ज लिखा भाई है सुने, और सुने उसको आला हजरत कह रहे हैं कि ये बात सुने बिल्कुल तो। ठीक है और ये रसूल अल्लाह की नजर में बहुत अच्छी है, तो मतलब बात यार अगले बंदे की भी तो सुन लेते हैं, कमाल हो गई है। मैंने आपका जबरदस्ती माइक म्यूट किया है, हद हो गई है। बात ये है कि किताब आपने खुलवाई है ना, हो सकता है कि कहने वाले ये कह रहे हों कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जो है ना हराम है, नहीं कहना चाहिए। तो ये फारसी क्या लिखी हुई है हमें बताएं तो सही ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताएं। चलें अब माइक ओपन करें और बोलें, तर्जुमा करें साथ, फारसी भी पढ़ें और ठीक पढ़ें, आप गलत पढ़ रहे हैं, और उसका तर्जुमा करके बताएं आप। चलें। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि भाई मैं या तो आप समझना नहीं चाह रहे या आप हकीकतन, मुझे पता है सब कुछ, मुझे समझा रहे हैं या हकीकतन आप नासमझ ही हैं। जब आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब दो ही बात है। ये कुद्दीसा सिर्रुहु, इसका तर्जुमा क्या है? आप नासमझ आदमी हैं, आपको चाहिए कि आप अपना मकतब बंद कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नासमझ आदमी हैं, आपको चाहिए आप अपना मकतब बंद कर दें। अगर नहीं पढ़ना आता तो मान लो कि नहीं मतलब पढ़ना अपनी आता, बकवास तरतीब ना जितनी करो भी अपनी। आपकी है ना, या तो वो बंद कर तमीज से दें बात या करो। फिर आप लोगों को इस तरह जो है ना डिस्टर्ब नहीं करें। देखें, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे अरबी से थोड़ा लगाव है, अरबी में समझता भी हूँ, मेरी जबान भी ऑलमोस्ट अरबी हो गई है, लेकिन फारसी मेरी जबान नहीं है, फारसी नहीं है, लेकिन अरबी आती है, लेकिन ये मुझे नीचे अरबी आती है, मैं अरब में रहता हूँ, मैं सऊदीया में रहता हूँ, मुझे अरबी आती है, तो करो तर्जुमा, कुद्दीसा सिर्रुहु का तर्जुमा क्या है? मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझ नहीं रहे या फिर आप हकीकतन ना समझ है, आप दूसरों को जाहिल कह रहे हैं और खुद आपकी हरकतें जाहिलों वाली हैं। मतलब जी अस्सलाम वालेकुम कितनी सीधी भाईजान, सीधी आपने बात है विकी भाई कि आपने खुद खुलवाया है तो आप हाँ, तो मैं सामने बता तो रहा हूँ आपको, उसके नीचे वाली लाइन में सीधा साफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह। आपने ये खुद पढ़ी है, खुद बताई है जी, बताएं ये क्या मैं लिखा सही हुआ पढ़ है? रहा हूँ और मैंने बताया आपको, और इसका सीधा सीधा आप अभी आप देखें, आपकी गर्दन से जब मैंने अब आपको जब मैंने गर्दन से पकड़ लिया है ना, तो अब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। दंदियां निकालो, दंदियां निकालो, दंदियां निकालो। दीन को ठट्ठा बनाया तुम लोगों ने, हंसी मजाक बनाया दीन को। ये ही तो मुशरिकीन ने मक्का का तरीका था कि वो दंदियां निकालते थे, वो ठट्ठा करते थे दीन के साथ। और ये दीन को तुमने ठट्ठा बना लिया, और ठट्ठा मजाक करने वालों, आप भी भाग रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे मौलवी भाग रहे हैं। चलो यार कोई और बात करें, जाहिलों को तो मैं सलाम कह सकता हूँ बस। नहीं बात करें ना, आप मुझसे बात करें। सकता हूँ शाह जी, मैं मुझे इजाजत दे। मैं जी जी यार जी, उसको जाहिलों को मैंने तो कुरान के हुक्म पे अमल कर दिया, सलाम कह दिया इनको। वो बिल्कुल वो ठीक है शाह जी, लेकिन ये है कि इसकी जरा थोड़ी वो धुलाई भी करने वाली थी। अच्छा, लेकिन जो अभी तो उसने नहीं, ये खुद भाग गया कि किसी ने निकाला है इसको? मालूम नहीं, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट डाली है ना भाई, हमने नहीं निकाला भाई, इसके निकाला मैंने निकाला। अच्छा आपने निकाला, बदतमीजी करा था। नहीं आप जवाब दें उसको दोबारा रिक्वेस्ट भाई, दोबारा रिक्वेस्ट पे आओ जरा। एक तो पहले एतराज बताओ, तुमने ये कहा कि सबा सनाबर की तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब मैं चाहूंगा कि तमाम लोग जितने हैं जो बात सुनो, पहले बात सुनो। मैं एतराज ये किया, मैं बात सुनाने आया हूँ, मुझे बात अपना सुनो यार, बात तो सुनो। तुमने ये एतराज किया है कि जो लोगों से तो मैं मुखातिब हूँ ही नहीं सर, इसलिए आप प्लीज चुप हो यार। मुबशिर साहब चुप कर जाओ, बात सुनो। तुमने ये सबा सनाबल पे एतराज ये किया है, वो उसकी तस्दीक कर दो। ये क्या वाकई यही तुम्हारा एतराज है कि सबा सनाबल की तारीफ की है और इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा है? क्या यही तुम्हारा एतराज है? सर सीधी सीधी बात है, मुफ्ती साहब बहुत ही मुहज्जिब है मेरे लिए, तमाम लोग बहुत, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बात हो रही है, बात सीधी सी यही है, जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं यही एतराज है। जी सर, बिल्कुल यही एतराज है और बहुत छोटा सा एतराज है, और मुफ्ती साहब ने जो है ना उसको लंबा करते हैं। अब जरा नीचे बैठ के वो सुनो जरा, अपने मिर्जा जेलमी की जो दीन जेलमियत है ना उसकी, वो जरा सुनो जरा। वीडियो भी उसकी पूरी गुलदस्ता अहले बैत के ऊपर मौजूद है वीडियो,
اللہ نے ایسا تم لوگوں کو ذلیل کروایا ہے نا، ایسا ذلیل کروایا ہے کہ وہ تمہاری جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے، جیسے قادیانیوں کی قیامت تک کے لیے ضلالت اور لعنت کا توق پڑ گیا ہوا ہے نا۔ اب نیچے بیٹھ کے ذرا یہ ویڈیو سننا، میں سناتا ہوں یہ گلدستہ اہل بیت کے بارے میں، سننا کیا کہتا ہے۔ ایک کاتب بھی غلطی کہہ سکتے ہیں، ہیومن ایرر، ہیومن ایرر ہے، یہ ایرر کسی سے بھی ہو سکتا ہے یار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار نماز میں بھولے ہیں تو سیدہ صاحب آپ کو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی نماز میں، آپ میرے لیے اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں، میں ویڈیو چلا دوں، لیکن ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان سے کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بتانے کے باوجود کوئی ڈٹا رہے اور کہ نہیں میں نے جو فرما دیا یہی حق ہے، ایسا نہیں۔ اور ہیومن ایرر ہونا ضروری ہے، ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرفیکٹ اللہ ہے، انسان تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق کا مخلوق ہونا ہی امپرفیکشن ہے۔ مخلوق کی زندگی اپنی ہے، هو الحی القیوم، ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے۔ جب کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام آج فیصلہ کر دے تو کل من علیہا فان، تو پیچھے صرف رب، اس طرح کی جو چیزیں ہے۔ تو باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند، اس کتاب کو اس نے خود پرموٹ کیا ہے، اور پرموٹ کرنے والے نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے یہ اس کتاب کو پرموٹ کیا ہے، اور اس کتاب کو کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا ہے، مقبول فرمایا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ آپ کا ہی خنزیر کیا کہتا ہے، یہ سنو ذرا۔ فرمایا اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی میں اگر بار بار تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال پڑھتی ہے میرے پیٹ میں تو درد اٹھتا ہے کہ یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں، جو کوششیں، ان کو میں صحیح کہتا ہوں، میں ان کو ایک دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام اگر کسی بات سے خوش ہوں، آپ تو کئی صحابہ سے بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خنزیر بکے گا کہ نبی علیہ السلام تو صحابہ سے بھی خوش ہیں، تو کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ اب صحابہ اکرام کی غلطیاں بھی ساتھ بتائے گا کہ صحابہ کو تو نبی علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا، لیکن ان میں بھی کہتا ہے خنزیر کی غلطیاں ہیں۔ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی 100% چیزیں نبی علیہ السلام اون کرتے ہیں۔ یہ تو صحابی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں اون کی جا رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 6 بندوں سے نبی علیہ السلام اپنی وفات تک راضی رہے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ یہ وہ جو رکنی کمیٹی بنائی تھی، یعنی وہ ٹوٹل 10 تھے نا شرم وشرم، اس وقت تک وہ 6۔ جی استاد محترم، بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو دلیل اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ تم میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مرزا انجینئر کہتا ہے اس میں گستاخیاں ہیں۔ تو جس میں گستاخی ہے تو اس کو نبی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میری کتاب کو خواب میں آ کر یہ کہیں گے کہ میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جبکہ مرزا انجینئر کہہ رہا ہے آپ بیٹھے رہیے گا، میں نے جانا ہے، تو میں نے صرف پیغام ایک دے دوں تو پھر میں جاؤں گا، آپ بیٹھے رہیں، براڑ لگا کے رکھیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، مجھے صرف آپ سے سلام لینی ہے اور حال چال پوچھنا ہے، پلیز جواب دے دیجیے۔ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ سر میں آپ کو بہت لائک کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے، اور آپ کی باتیں بڑی سنتا ہوں۔ جزاک بہت شکریہ۔ اچھا، بہت شکریہ۔ دوستوں کو پیغام دینا ہے یار، اپنے پیار محبت والے دوستوں کو جی سر، کہ کتاب مائک ذرا میوٹ کریے گا، میں نے ایک پیغام دے جی۔ گزارش یہ ہے کہ ختم نبوت کورس کتاب الحمدللہ اس کی پہلی جلد جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چھپنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ صرف وہ ایک تقریر ہے، بلکہ 2 تقریریں ہیں۔ ایک متین خالد صاحب کی، ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ 1 آدھ دن میں نہ بھیجتا ہوں،
تو ایک صابر حسین شاہ صاحب ان کی تقریر لگنی ہے، تو بس اس کا انتظار ہے، تو پھر ہم نے وہ پرنٹنگ کے لیے پریس میں بھیجنی ہے انشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے چھپوانے کے لیے مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ کتاب کو چھپوائیں بھائی، چھپوانے کے اندر آپ حصہ لازمی ڈالیں۔ اچھا، یہ پیغام تھا، اور پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے یہ پیغام دی ہے، لیکن دوستوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ مہربانی کریں بھائی، یہ کتاب چھپنی چاہیے، اس کے اندر قادیانیوں کے ہر اعتراض کا جواب ہے، کتابوں کے اصل سکین، اصل حوالہ ہم نے کتاب کے یعنی بلکہ ہر سبق کے آخر میں ہم نے سٹائل ابھی اس کتاب کے اندر تھوڑا سا تبدیل کی ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ پھر بھائی استاد محترم نے جانا ہے، ان کو جانے صرف 1 منٹ لوں گا۔ استاد محترم میاں عظیم عرض کر رہا ہوں، اور دراصل میری دوسری آئی ڈی بلاک ہوئی ہے، تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی استاد محترم، میں نے الحمدللہ سے سوچا ہوا ہے، بس آپ سے دعا کی التجا ہے، کیونکہ میرا جو ادھر دبئی میں ویزا ہے نا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، تو بس دعا اچھا کریں میرا جلدی میاں عظیم، وہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں، نہیں وہ آن لائن ڈسکس نہیں کرتے، یہ سمجھداری والا کام ہے۔ رہی بات دعاؤں کی، دعائیں جو ہے نا وہ 1 منٹ میاں مائک میوٹ کرو، دعائیں پوچھ کے نہیں کروائی جاتی کبھی بھی، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، بلکہ عمل کوئی ایسا کیا جاتا ہے کہ دعا کا وہ باعث بن جائے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جو وقت تھا، تو اس ٹائم کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو دعا کرو گے نا قبول ہوگی۔ یقین مانے اللہ جانتا ہے، میں نے اپنے لیے تو مجھے پتہ نہیں کوئی یاد ہے کہ نہیں، میں نے کوئی کی کہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے کی تھی، جو ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے دعائیں کی، اپنے شیخ کے لیے میں نے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ تو دعا تو وہ ہوتی ہے بھائی جو اس سے پردہ چل رہی ہوتی ہے، اور دلوں کے بھید اللہ خوب جانتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، وہ نیت جیسی ہونی ہے جو نہیں اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ نہ بھی کوئی دعا کرے وہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے۔ اچھا چلیں بھائی، ٹھیک ہے یار، مجھے جانا ہے بھائی، ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کو چلائیں، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عثمان بھائی، نیچے پپو